Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another episode of Smart Money Analysis. And in this particular video, जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे monthly expiry हो सकती है. Today is Tuesday, परसों monthly expiry है. So this could be a good one and let's try to understand कि कहाँ पे चीजें expire हो सकती है. तो very firstly, like we'll start off with so सबसे पहले कल एक वीडियो बनाया था मैंने that why I think that the market hasn't bottomed out yet. And again I think थोड़ा above average response था इस पे. Again this was in no attempt any intention to spread panic or fear, but I think जो भी बातें की थी that were all logical and backed by data and facts. So definitely you can go check this out if you haven't already yet. And ठीक है, आज के वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं. We'll start off with the global markets. Global markets clearly you can see बहुत ज़्यादा positivity नहीं है. सुबह से this is negative. And today, if I'm not wrong, so Google is supposed to present its earnings today. So again, important day and expectation इतनी अच्छी नहीं है. Like कल के वीडियो में भी I told you कि Snapchat was 40% down on the day it declared its results because ads से जो भी revenue आया that wasn't up to the mark. So maybe economy is not that good and currently advertisers are not willing to pay a lot. And you must know कि जितनी भी ad tech companies है, be it Google or Facebook and a lot of the other IT giants, the majority of the revenue comes from ads. So that's not a very good thing. But again, if Google is supposed to, pull off some really good results, better than expectations, then definitely you can expect a good uptake as well. But तब तक market is in pressure. And आज से FOMC की मीटिंग भी स्टार्ट है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो लोग कल डिक्लेयर करेंगे फाइनल जो भी उनका डिसीजन रहेगा विद रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट रेट. बट still things are not looking good. Wix is also up by 1.65%. तो ओवरऑल दिस इज नॉट गुड. एंड एक और चीज जो लाइक आग में तड़के का काम कर रही है दैट इज दिस डॉलर इंडेक्स. सो इट्स नॉट रियली कल थोड़ा ठंडा हुआ था बट अगेन इट इज क्लोज टू 107 व्हिच इज नॉट गुड. तो बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी कूल ऑफ हुई है. Definitely with a fall in the indices, fall in bond yields is also considered slightly positive. बट अगेन ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी क्योंकि इन 2 दिन में फेड की मीटिंग है एंड बेस्ड ऑन व्हाट Fed will speak with regards to the interest rate. ये bond yields काफी dynamically बदलेगी in these upcoming 2 days. But again, like the interesting thing to observe is कि जो 3 months की bond yield है and जो 10 year की bond yield है, now the difference is merely 0.2, right? And this is extremely dangerous because this difference was even wider yesterday, but ये पास आते जा रहा है. This difference is coming closer to zero. So this is like very dangerous. You can check out कि कोरोना में जो fall आया था उसके ठीक पहले this yield curve was basically inverted. So 3 months bond yield that was higher than the 10 years bond yield. So that was not very positive, and you saw the outcome. अगर 2 year की bond yield की बात करूँ, so that is very close to 3. But now you can see कि ये जो difference है, this has become 0.27 or 0.26 roughly, which is like again reaching a new low in this particular month. तो कल I showed you this was close to 0.2. अब ये 0.26 हो चुका है and close to 0.2 था last time in Feb of 2007. उसके बाद क्या फॉल आया यू कैन हैव अ लुक एट योरसेल्फ. तो अगेन आई थिंक द एजेंडा इज प्रीटी मच क्लियर कि डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ पेन जब तक बॉन्ड यील्ड्स एंड इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग एल्स डजंट गेट बेटर. एंड क्रिप्टो अगेन यू कैन सी कि बिटकॉइन ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया 21,000 का. इथेरियम इज आल्सो बिलो 1400. ये 2 दिन पहले अबव 1600 था बट यू कैन सी कि कितने रैपिडली यहाँ पे फॉल हो रही है चीजें. Talking about AGX Nifty, तो we are somewhere close to 16,450 and डेटा देख के लग रहा है कि एक्सपायरी में थोड़ा प्रेशर हो सकता है या एटलीस्ट एक्सपायरी से एक दिन पहले कल अच्छा खासा प्रेशर हो सकता है. दैट विल कंफर्म विद द डेटा. सो एक बार कैश मार्केट का डेटा देखते हैं. उससे पहले जस्ट लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, राइट? तो आज स्लाइटली फ्लैटिश काइंड ऑफ एन ओपनिंग थी. अगेन कल का वीडियो भी देखा हो तो आई टोल्ड यू कि डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव है. तो पहले 15 मिनट में इनफैक्ट इट गॉट फैक्टर्ड कि नेगेटिव डेटा था, अच्छे खासे पुट्स बाय थे एफआईआई के, एंड दैट्स व्हाट यू सॉ. सो यस, डेटा डज वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और अभी आई थिंक नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि कल सबसे पहला जो सपोर्ट रहेगा दैट वुड बी 16,420. अगर ये टोटली आई थिंक कि ये गैप फिलिंग तो होनी है. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yeah, sorry about the disturbance. Welcome back. So yeah, I was saying कि if you sustain below 16,420 then definitely ये gap fill होगा. And अगर ये gap पे भी we doesn't stop, तो I think the ultimate support that we have is in this particular range, that is 16,220 to 16,280. ये एक बहुत ही important range रहेगी. If we give a closing below this in this particular monthly expiry, then really आके काफ़ी ज़्यादा pain होने वाला है in August, specifically in the start of August.
एंड अगेन जो लॉन्ग टर्म बियरिश व्यू है वो तो अभी भी इंटैक्ट है, बिकॉज फंडामेंटली चीज़ें अभी तक एज सच कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, राइट. एंड अगेन इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक्स ऑल्सो, सो यू विल सी कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो रेड में है. एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द मार्केट ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन कि जो डिक्लाइन है, द नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट वर डिक्लाइनिंग वर अ लॉट मोर कंपेयर टू द वंस दैट वर एडवांसिंग. तो अगेन ओवरऑल मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है. सेक्टोरियल आई थिंक अगेन सारे सेक्टर्स भी नेगेटिव है. आईटी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर नॉट डूइंग क्वाइट गुड. और बैंक निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा रैली हुआ था इन द लास्ट लेट्स से वीक, सो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक तो बनता है. एंड सर्टनली लाइक थोड़ा सा पुल बैक अगर आ भी जाता है, सो दैट्स नथिंग बैड अबाउट दैट. बट स्टिल अपना जो लॉन्ग टर्म व्यू है दैट इज स्टिल बियरिश. एंड दैट व्यू इज़ फॉर द एंटायर ईयर, राइट. सो इवन इफ यू रैली, सो डोंट कम एंड से कि गलत हो गया ऐसा. एंड frankly speaking it doesn't really matter to me, right. I told you my view. I shared कि मैं short हो रखा हूँ market पे, and I have hedged my positions, so I'm fine with it, right. So nothing wrong in that. Okay, dollar once again थोड़ा सा cool off हुआ है 80 के नीचे, but the day this gives a breakout of 80, I think that's going to be a really panicful day for bank nifty. तो ठीक है, these were something about the levels. एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं एंड फिर डेटा देख के क्विकली विल ट्राई टू रैप दिस अप. डेटा में अगेन यू कैन सी द ब्लंडर्स फॉर सेल्फ. अच्छी खासी पुट अनवाइंडिंग हुई है सब जगह से. एंड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ये इतना नहीं था. ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ये काफ़ी ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है, एंड दिस इज़ नॉट अ रियली गुड साइन, राइट. पुट राइटर्स अगर अपनी पोजीशन क्विट करके भाग रहे हैं, दैट मीन्स दैट दे आर अफ्रेड कि मार्केट माइट नॉट सस्टेन, एंड एक्सपायरी पे स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है, राइट. तो मंथली एक्सपायरी है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल. स्पेसिफिकली अगर नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो तो, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स एन इवेंटफुल वीक. तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जब भी ये चीज़ फैक्टर इन होगी. तो सर्टनली ओ आई लेट से रिड्यूस हो रहा है, तो सर्टनली लाइक देर आर इशूज़. एंड सर्टनली यू कैन से कि जब यहाँ पे अच्छा खासा ओ आई गेन हो रहा है ऑन द कॉल साइड, एंड पुट साइड पे इट्स रिड्यूसिंग, एंड रिड्यूसिंग भी यहाँ तक नहीं, 15,800 तक कॉन्टीन्यूस देयर हैज़ बीन सम रिडक्शन. यहाँ पे सिर्फ एक 8.5 लाख का ओ आई जो है गेन हुआ है, बट अगेन नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. ये भी हो सकता है बाइंग हो, एंड आई थिंक सम पोर्शन ऑफ दिस एटलीस्ट इज बाइंग, either by pro or by the FI. That we'll see in the data, but again option chain also is not looking very good. This is definitely not good. तो ठीक है, एक बार डेटा देखते हैं. विल स्टार्ट ऑफ विद द कैश मार्केट. कैश मार्केट में वंस अगेन आई टोल्ड यू कि ये जो इल्यूसिव बाइंग थी ये सिर्फ वही है. यू कैन सी अगेन कि वापस से FI आ चुके हैं अपनी वाली पे, एंड दे हैव सोल्ड फॉर मोर देन 1,500 crores, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सेलिंग बाय द वे. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट गुड, एंड लेट्स हैव अ लुक एट द डेरिवेटिव्स डेटा एंड ट्राई टू रैप दिस पर्टिकुलर थिंग अप. तो अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में देयर हैज़ बीन सम नेगेटिविटी टुडे, ऑल्दो द गुड पार्ट इज़ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे नहीं है फ्रॉम FI है. मोस्टली देयर हैज़ बीन लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट द इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इज़ पिछले लेट्स से ये जो 4 दिन है इसमें जितने भी लॉन्ग्स यहाँ पे बनाए थे इंडेक्स फ्यूचर्स में, 2 दिन में उसका 50% रफली दिस 50% ऑफ ऑल द लॉन्ग्स मेड हेयर वो एग्जिट हो चुका है, एंड द नेट रेशियो हैज़ अगेन कम डाउन टू 36, विच इज़ नॉट वेरी गुड, राइट. ओनली पॉजिटिव दैट यू कैन टेक फ्रॉम योर इज कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पे नहीं बिल्डअप किया है. देयर हैज़ बीन मोस्टली लॉन्ग अनवाइंडिंग, सो इवन दीज पीपल आर नाउ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट और ऊपर जाएगा इधर से. लेट्स सी द स्टॉक फ्यूचर्स. स्टॉक फ्यूचर्स में देयर हैज़ बीन रिडक्शन ऑफ 0.38% रफली. यहाँ पे भी अच्छे खासे लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं. कल शॉर्ट्स भी बिल्डअप हुए थे, बट आज मोस्टली देयर हैज़ बीन सम लॉन्ग अनवाइंडिंग, एंड अगेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ. तो यहाँ से मोस्टली ओपन इंटरेस्ट निकलता ही है स्टॉक फ्यूचर्स से, राइट. दिस इज़ फॉर द करंट मंथ. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी, डेफिनेटली नॉट अ पॉजिटिव डेटा. यहाँ पे नेगेटिविटी है दोनों जगह पे, एंड प्राइमरी द नेगेटिविटी इज़ इन द इंडेक्स ऑप्शन. सो इफ़ यू सी कॉल लॉन्ग्स हैं क्लोज टू 29,000, बट उसके सामने कॉल शॉर्ट्स ऑलमोस्ट 30,000 और 31,000 शैल ऐसे. तो यहाँ पे यू कैन सी नेट ऑन नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग हुई है, एंड द थिंग टू ऑब्जर्व इज़ कि अच्छे खासे यहाँ पे पुट लॉन्ग्स हो रखे हैं, एंड द पुट शॉर्ट्स इज मे बी नॉट दैट हाई इन फ्रंट ऑफ दैट. तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग, राइट. सो नेट ऑन नेट बेसिस माइन्यूट अमाउंट ऑफ कॉल शॉर्ट and considerable amount of put long, so index options ka data is also not very positive. Talking about Prodesk, so Prodesk again यहाँ पे mostly options का data we should consider, and you can see वो जो put writing निकलती हुई देखी option chain से. I told you either that is from FI or that is from Pro, and that's what you can see कि यहाँ पे Pro ने अच्छे खासे put shorts आज exit किए हैं, put longs भी exit किए हैं, but I think they are mostly shorted calls. तो इवन दे आर प्लेइंग डिफेंसिवली, क्योंकि दे ऑल्सो नो कि काफ़ी इवेंटफुल वीक है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वाइल्ड स्विंग्स नॉट ओनली ऑन द डाउन साइड, अप साइड भी आ सकते हैं, देयर इज सम पॉजिटिव सरप्राइज फ्रॉम द फेड. तो सर्टनली दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीक. अगेन द सजेशन इज इंटरमीडिएटली डेटा नेगेटिव है, हो सकता है कल
एक झटका नीचे की साइड देखने को मिले भी. So that is the possibilities that we have, and certainly be very careful and trade with tight hedging or stop losses अगर intraday trader हो तो. And positional तो it's goes without saying कि you should really not carry positions without hedging, क्योंकि you never really know. काफ़ी सारे events हैं and generally the markets are quite volatile. तो एक big gap up या gap down can really destroy your capital. So capital protection first, everything else is secondary. So I hope you enjoyed this particular video, and as usual thank you for all the above average response on the last video. I hope that ये video भी कुछ पसंद आया होगा and कुछ gain किया होगा. So again that similar request that if you gain something out of this, please do consider liking this particular video, and if you're new here and coming here for the first time, subscribe to this channel for more such content. So yeah, may you have a profitable expiry. Thank you so much for watching this video till the end. Take care and bye bye.